and good evening to you all. Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Person with Disability CRC गोरखपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का समय कोविड-19 पैंडेमिक के समय से गुजर रहा है और इस एडवर्स सिचुएशन में आज के इस वेबिनार कोविड-19 के मनोसामाजिक सहयोग के विषय पर आज का ये वेबिनार आयोजित किया गया है और इस ई काउंसलिंग सीरीज वेबिनार 82 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डे टू डे लाइफ में कोविड-19 की वजह से बहुत सारे नॉर्मल पर्सन्स, बहुत सारे दिव्यांगजन्स आइसोलेशंस और डिफरेंट स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहे हैं। तो आज के सिचुएशंस में व्हाट आर द साइकोसोशल सपोर्ट्स फॉर द पर्सन विथ disability or other professionals or normal individuals. So इसके आज इस वेबिनार को इसी के संदर्भ में आयोजित किया गया है। So first of all, without taking much time, I would like to welcome our director, Dr. Himanshu Das sir, director of National Institute of Empowerment of Person with Visual Disabilities, Dehradun. Welcome, sir. I would also welcome to our keynote speaker of today's webinar, Dr. Premanand Misra, sir, who is an assistant professor of special education, NIEPVD Regional Center, Bhubaneswar. Welcome, sir. I would also welcome to our keynote speaker, our resource person, Sri Dasrath Chaudhary, sir, who is also a lecturer in rehabilitation psychology as well as officer in charge of NIPID RC Mumbai. So warm welcome, sir. And all CRC team members who is continuously giving the effort during the COVID-19 pandemic or in the e-webinar form in the digital platform. So this is a very nice session for the during the COVID-19 and what are the psychosocial tips and advices. Our speaker will be there. So without taking much time, I would like to welcome our keynote speaker, Dr. Premanand Misra, sir. Please welcome, sir, and give your few words, sir, please. Thank you very much, sir. At the very outside, I sincerely pay my respect to Dr. Himanshu Das, sir, a noted special educationist in the country, a strategist, a planner, and an able administrator, positioned now at NIEPVD Dehradun as a director. Ravi Kumar ji, resident coordinator of CRC Gorakhpur, coordinator of this program, Rajesh ji, or Dasrath sir, the speaker today. My warm welcome to all my respected professionals who have joined here and the participants who have also made our program successful. I take this opportunity to thank CRC Gorakhpur again for organizing such a nice webinar at this critical juncture. The Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India, is spreading the awareness regarding COVID-19 and how to prevent COVID-19 situation, how to prevent the sufferings for the PWDs in the country so far as possible. This webinar is also a part of it. I again thank Rajesh Kumar ji and CRC Gorakhpur along with Ravi Kumar ji who have given me a chance to speak on this occasion as a keynote speaker. In fact, it is all known to everybody that COVID-19
is a very unpredicted situation. First time ever as a pandemic situation in the whole world. And the worst affected is India. We will be dealing with, मैं हिंदी में थोड़ा poor हूँ, so I may please be allowed, Ravi Kumar ji and Rajesh ji, I may please be allowed to speak English. Please, sir, I'll be managing continue, with sir. it. Please, sir, continue, sir. Thank you, thank you. And as we all know, the whole world is suffering from this pandemic situation. Coming under this pandemic situation, whole world is suffering. The death toll is rising day by day. Every day around some 4,000 people are dying. The people who are vulnerable, people who are very much prone to be affected in this situation are our persons with disabilities and the persons who are working for the PWDs also. With the special educationists, the therapists, caretakers or caregivers who have been dealing with persons with disabilities must be very much aware about, must know about what to do, how to prevent COVID to the most. If we think so, the visually challenged masses and the persons dealing with the visually challenged, again, the persons or the children with neuromuscular diseases and the persons who are giving care to them are also worst affected. This is a disease, COVID, coronavirus disease, CO for corona, VI for virus, and D for disease, COVID. Since found out in 2019, is popularly known as COVID-19. This is generally transmitted by touch of surfaces, touch of individuals for which the visually challenged masses, they are worst affected since they have to take the help of some others to have a personal experience of the world in the environment. So, to avoid the transmission of touch, the persons who are dealing with persons with disabilities at home or at study centers, special schools, residential setups, therapy centers for the visually challenged who have been suffering from additional disabilities also, it is a very challenging situation. Again, the psychosocial issues due to this COVID-19 unpredicted situation, we are forced for quarantine, which multiplies diseases. This forced quarantine produces acute panic, anxiety, obsessive behavior, hoarding, and in many of the cases,
post-traumatic stress disorder in the long run. PTSD, post-traumatic stress disorder. After quarantine, it is also observed in most of the cases in the long run. This other kinds of disability also. As the coronavirus sweeps rapidly across the world, it has disrupted our lives and daily routines. The vulnerable group include the persons with disabilities, older adults, children, and other disadvantaged groups. In this period, the government of India has been taking its utmost care, trying its level best to prevent this spreading of coronavirus. But still we see the situation is going beyond our control. As we all know, we have been also watching in TV, reading out in medias that black fungus is another fatal disease that has been also following the COVID affected people. After the COVID affected people are cured, even if we work on the soil, मिट्टी में हम काम करते हैं, तब भी हमारा ब्लैक फंगस आ जाता है. It's a skin infection. So how to save the PWDs, persons with disabilities, walking on the soil or working on the soil? As we know, India is mostly rural-based country. Nearly 70% to 75% of the total population live in villages. So working on the soil is mostly our livelihood. So the scientists of the country and the medicos, they have already started their research work. How to save the people of India from this kind of skin infection, black fungus. At the present situation, Government of India has stressed upon SMS. It's not short message service. It's social distancing, masking, and sanitization, SMS. This much at least we can spread, create awareness among all our people. But to maintain social distancing for the visually challenged is a major challenge also. Our regular lifestyle, the physical activity, emotional activity, psychological activities, all these are coming to a halt now. The whole routine work has been diverted.
for the visually challenged masses, or the persons with disabilities, maybe orthopedically handicapped, maybe with neurological disorders, is a very difficult job. How to access to the place where hand washing is available, sanitization is available, where to touch and where not to touch is a problem, is a challenge. It has affected the COVID-19, and the second slot has affected the pediatric to geriatric population. I mean, irrespective of all class, all groups, people of all age groups have been affected. Even yesterday also, a 10-year child who came to AIIMS Delhi succumbed to his lust, succumbed to COVID-19 despite all care taken by the doctors. A 10-year-old child could not be saved also. So, although we hear, although we see that the third slot of COVID will be very fatal to the children, still we see the children are also suffering their worst in this COVID second slot. The data says 3.4% of the children up to 10 years and 5.3% from 10 to 20 years are suffering now. But the third slot will be more fatal, 20 times more fatal than this, as we get the reports in the media. But all these reports, all these discussions in the media create a very fearful situation, anxiety, depression, obsession in our minds. People have been advised to stay inside. Even if we were at home also, we have been advised to use masks, sanitize our hands, wash our hands regularly. Still, to purchase online, going through limited activities, also creates a panic in us. In this critical juncture, in this critical period, this webinar on the topic, the psychosocial support required by the persons with disabilities and the masses, common masses in an inclusive society, will be holding its major role to create a sort of awareness and relieve our stress and anxiety. As a keynote speaker, with this much of words, I express again my sincere thanks to Rajesh ji, Ravi Kumar ji and CRC Gorakhpur for giving me an opportunity to share my views on the topic
and I will be glad, I will be grateful to the noted speaker who has been invited today, Jagdish sir, and participate with other participants. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much for this nice information about COVID-19 and all, and about your blessings. मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं आप सभी को एक बार पुनः बतलाना चाहूँगा कि आज का जो हमारा विषय है, कोपिंग विथ कोविड-19 साइकोसोशल सपोर्ट, और हमारे साथ वक्ता के रूप में जुड़ चुके हैं श्री दशरथ चौधरी सर। आप हमारे गुरु भी रह चुके हैं, आपका आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहा है, और हम चाहेंगे कि सर आप आएँ और अपने उद्बोधन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को, सभी सम्मानित पुनर्वास व्यवसायिकों को अपने अनुभवों को साझा करते हुए साइकोसोशल सपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करें। स्वागत है सर। नमस्कार, मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस सर, कंटिन्यू सर। मैं सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु दास जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, डायरेक्टर निफ्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने यह प्लेटफॉर्म हमें उपस्थित करवाया, हमें आज का यह मौका दिया इस टॉपिक पर बोलने के लिए। मैं राजेश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा तथा उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर यह वेबिनार तैयार किया है और मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और आज के सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं प्रेमानंद मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा की नोट प्रेजेंट किया है। आपको जैसे पता है कि अभी कोविड-19 चल रहा है और यह जो महामारी चल रही है यह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, और क्योंकि हम यह पिछले साल मार्च 2020 से देख रहे हैं और देखते देखते यह पूरा एक साल गुजर गया और हमारी जो कंडीशन है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है, और इसमें ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। और इस समस्या के दौरान आपने देखा होगा कि कर रहे थे, बहुत लोगों ने ट्रेन से ट्रेवल किया, कुछ लोगों ने बस से ट्रेवल किया, कुछ लोग पैदल ही निकल गए, कुछ लोग 400 किलोमीटर, कुछ लोग 500 किलोमीटर पैदल चले और अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश की। यह जो दुख भरी कहानी है यह अच्छी बात नहीं है, इससे हमें बहुत दुख होता है और यह हमको पता चलता है इससे कि यह जो महामारी है यह कितनी खतरनाक है। यह जो महामारी है इससे बचने के लिए हमारे पास जो हमें एडवाइस दी गई है डॉक्टर के साथ और डॉक्टर टीम और गवर्नमेंट की तरफ से, वो है पहला है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने से ही यह बीमारी हमारे देश से बाहर जाएगी और हम लोग ठीक होंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह महामारी एक ऐसी महामारी है जिसने हमको आपस से दूर कर दिया है, जबकि सभी बीमारी में हमको यह कहा जाता है कि आप परिवार के साथ रहो, आप माँ मम्मी डैडी के साथ रहो, आप भाई बहन के साथ रहो, आप दोस्तों के साथ रहो, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इवन यदि आप हॉस्पिटल में हो तो किसी न किसी फैमिली मेंबर को कहा जाता है कि आप रहे और इनको मोटिवेट करते रहे अच्छे होने के लिए। लेकिन ये पहली महामारी है जिसमें यह बताया गया है कि आप अपने सभी लोगों से दूर रहो, और दूर रहोगे तो आप बीमारी से बचे रहोगे, और बीमारी से बचे रहोगे तो जीवित रहोगे। तभी हम लोग इस महामारी से बच सकते हैं और जीत सकते हैं। और फेस मास्क दूसरा है जिसमें हमको अपना चेहरा छिपाना है। पहले हम लोग अपना चेहरा दिखा कर चलते थे कि भाई चलो देखो मैं कौन हूँ या मैं पहचानूं कि आप कौन है, लेकिन आजकल हमको अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। मैं कौन हूँ आप मत पहचानो, आप कौन हो आप मत बताओ कि आप कौन हो। और ये सब करते करते हमारा जो सोशल सिस्टम है पूरा धाराशायी हो रहा है। उसके बाद यह है कि इस महामारी का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। जो बताया गया है वो है वैक्सीन। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ दो बड़ी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती है, एक है कोवैक्स, एक है कोविशील्ड है और एक है कोवैक्सीन, जो दोनों मिला के 8 करोड़ डोज बना सकती है महीने में।
और हमारा जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 135 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है। आप जरा सोच लीजिए, यदि सबको वैक्सीन प्रोवाइड करना हो तो हमें कितने महीने लगेंगे? अप्रोक्सीमेटली 1 साल। इसका ये मतलब है कि हम सभी को कम से कम 1 वर्ष इंतजार करना चाहिए वैक्सीन के लिए, कि सबको आखिरी वाला जो व्यक्ति होगा उससे भी वैक्सीन मिल जाए और वो सुरक्षित हो जाए। उसके लिए हमें कम से कम 12 महीने लगेंगे, और ये 12 महीने के लिए हमें बाकी जो टेक्नोलॉजी है, बाकी जो चीजें है, बाकी जो एडवाइस है, उसका उपयोग करते हुए हमें जीवित रहने की कोशिश करनी है। उसके बाद आता है जिससे कोविड हो गया है, उससे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, लीवर में ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है बॉडी में वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो बाहर से हमको ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फोर्सफुली सप्लाई करना है बॉडी को। और हमारे पास जो ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है वो भी काफी कम है। हमको नहीं पता था कि अचानक ही इतना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो सभी स्टेट ढेर सारा ऑक्सीजन मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। कोई 600 मिलियन टन मांग रहा है, कोई 700, कोई 900, और अब इतना ऑक्सीजन सडनली मैन्युफैक्चर करना इम्पॉसिबल है। तब भी कुछ कुछ हॉस्पिटल में अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हैं। बाहर से कुछ देश हमें मदद कर रहे हैं, सिलेंडर भेज रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट भेज रहे हैं, और ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक भेज रहे हैं, जिससे हमारी समस्या थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिमांड पूरी नहीं हो रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसका ये मतलब है कि अब हमें और ज्यादा चौकन्ना और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम बीमार हो गए तो बीमार होने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना होगा, और हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, और बेड जब अवेलेबल नहीं है तो हम कहाँ एडमिट होंगे, और उसके बाद जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। बहुत लोग उसके 3 गुना 4 गुना दाम पर ऑक्सीजन को और उससे रिलेटेड जो मेडिसिन है उसको बेच रहे हैं। ये सब जो सिचुएशन है ये बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। इस सिचुएशन से हमको बचना चाहिए। और वैसे भी कोई नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक इंजेक्शन है जिसे रेमडेसिविर इंजेक्शन कहा जाता है, वो भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन उसका भी कालाबाजारी हो रहा है, जमाखोरी हो रहा है, और वो भी हमें मिल नहीं रहा है। उसकी कॉस्ट 50,000 60,000 रुपए लगा के लोग बेच रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इनसे हमको बचना चाहिए, और बचने का सिर्फ एक तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फेस मास्क लगाए। और गवर्नमेंट जो लॉकडाउन लगा रही है, कई स्टेट में फुल लॉकडाउन है, कई स्टेट में पार्शियल लॉकडाउन है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, हमको तकलीफ हो रही है, हमको जिम में जाना है, हमको होटल में जाना है, हमको घूमने के लिए निकलना है, वॉकिंग के लिए निकलना है। ये तो वॉकिंग, जिम, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। यदि हम जिंदा रहे तो अवश्य करेंगे। यदि जिंदा ही नहीं रहेंगे तो वॉकिंग करके क्या फायदा, मॉल खोल के क्या फायदा, दुकानें खोल के क्या फायदा। तो सबसे पहला है कि हम जिंदा रहे। जिंदा रहने के लिए हमें जो भी करना चाहिए हम उसे करेंगे और करना चाहिए। दूसरा और एक बात यह है कि हमारे जो न्यूज चैनल चल रहे हैं, 24 आवर्स के जो न्यूज चैनल है, वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खतरनाक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यदि मैं नॉर्मल हूँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, सिर्फ न्यूज चैनल देखकर। तो न्यूज चैनल में क्या बता रहे हैं? जलती हुई डेड बॉडी बता रहे हैं, कब्रिस्तान में लाइन लगी है डेड बॉडी को जमीन के नीचे लगाने के लिए, या लाइन लगी हुई है, सब लोग अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये बहुत खतरनाक है। या हॉस्पिटल में हो हल्ला हो रहा है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, या मेडिसिन नहीं मिल रही है, या डॉक्टर नहीं अवेलेबल नहीं है, या डॉक्टर ध्यान नहीं दे पा रहे। ये सब चीजों का न्यूज चैनल में भरमार है। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप लोग थोड़ा सा न्यूज चैनल को भी अवॉइड करें अपने आप को ठीक रखने के लिए। जैसे ही आप न्यूज चैनल अवॉइड करेंगे, आप केवल मतलब पूर्वतः जो ब्रेकिंग न्यूज आप देखते केवल उतना देखिए, और बाकी न्यूज को आप बंद कर दीजिए और न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये हमारे जो साइकोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ का जो
एक कारण है, वन ऑफ द रीजन न्यूज चैनल भी है। माना कि न्यूज चैनल हमारे लिए अच्छा है, हमें 24 आवर्स से न्यूज पहुंचाते हैं, लेकिन ये न्यूज इतना ज्यादा हो रहा है, इतना खतरनाक हो रहा है कि जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, दूसरे चैट मीडिया है, जिसमें जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा फैलाई जा रही है कि आज इतने आदमी मर गए, कल उतने आदमी मर गए, लोग रोज आदमी मर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ये मांग रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, वो सरकार ऐसे कर रही है, सरकार हॉस्पिटल में अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है। ये सब इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है जिससे हमारे मन में नकारात्मक एनर्जी पैदा हो रही है। हम आपस में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने दोस्त पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कोई फैमिली फ्रेंड यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, हमें पता नहीं है, हमें कोई यह विश्वास नहीं है कि वो व्यक्ति वापस आएगा या नहीं आएगा। हमारे मन में इतनी नकारात्मक सोच भर गई है। तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए, सोशल मीडिया से भी थोड़ा बचना चाहिए, और जो भी सोशल मीडिया में आता है सबके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उससे बगैर से वेरीफाई किए फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेट है, इंटरनेट में भी बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ एग्जैजरेटेड है, कुछ इस गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं, उस गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। मेरा ये एडवाइस है सभी को, इन सब चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। हमको वो चीजें लेना चाहिए जो हमारे काम की है, जो हमारे अच्छे के लिए है, जो हमारे को सकारात्मक सोच डेवलप करती है, हमको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेजर इश्यू क्या है, जब हम ये सब देखते हैं, जैसे हम 1 साल से देखते आ रहे हैं कि कोविड-19 फैला हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, फिर इस साल दिसंबर जनवरी में लॉकडाउन को धीरे धीरे कम किया गया, लोगों को परमिशन दी गई कि भाई आप मार्केट खोल सकते हो, आप मार्केट जा सकते हो, मार्केट से आप खरीदी कर सकते हो। धीरे धीरे मॉल खोले गए, धीरे धीरे ट्रेन चालू की गई, बस चालू की गई। ये सब होने के बाद अचानक ये सेकंड लहर आ चुकी है, और सेकंड लहर इतनी खतरनाक बताई जा रही है कि जो हमारा नंबर ऑफ केसेस है, वो नंबर ऑफ केसेस हमारे 3 लाख 4 लाख पर डे हो रहे हैं नेशन वाइज। तो ये जो हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ये हमारे मन में डर का भाव पैदा कर रहा है, एंजाइटी पैदा कर रहा है, डिप्रेशन हमको पैदा कर रहा है। और ये जो डर है, ये डर ही हमारे को इतना ज्यादा हो रहा है कि यदि बाई चांस मुझे यदि कोरोना हो जाता है तो मैं हॉस्पिटल जाते जाते या हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मैं अच्छा होगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और शायद इसी डर से हमें हार्ट अटैक भी आ रहा है। हार्ट अटैक का कोई फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, जो भी हो, ब्लड क्लॉट हो, या कोरोना इतना ज्यादा इन्फेक्शन कर दिया है, या कोरोना ने हार्ट को इन्फेक्शन किया है, वो भी कारण हो सकता है हमारे हार्ट अटैक को। लेकिन ये जो 50% जो फियर हमारे बॉडी में घुस गया है, हमारे दिमाग में घुस गया है, हमारी सोसाइटी में घुस गया है, वो फियर भी शायद हमारे हार्ट अटैक का एक कारण हो रहा होगा। और ये फियर ही हमारे को इरिटेशन कर रहा है, हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमें अभी ये ढेर सारी सिचुएशन है जो हम टीवी में देखकर, सोशल मीडिया में देखकर हमारे मन में ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, और ये चीज हमें बहुत खतरनाक ढंग से हमें परेशान कर रही है। उसके बाद सारी स्कूलें बंद है। स्कूल बंद है इसका मतलब है कि जितने भी बच्चे स्कूल जाते थे वो आज घर में बंद है, घर में ही है। हमारे शायद 1 रूम किचन हमारा घर होगा, 1 BHK होगा, 2 BHK होगा, या हमारा इंडिविजुअल हाउस होगा। अभी हम सारे दरवाजे खिड़की बंद करके घर के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते, रोड के ऊपर नहीं जा सकते, आसपास का जो प्लेग्राउंड है वहां नहीं जा सकते, जो गार्डन है वहां नहीं जा सकते। अब हमको इस कोरोना ने एक घर के अंदर बंद कर दिया है। हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती थी कि बच्चे सुबह स्कूल में जाते थे, शाम को आते थे, बच्चे दिन भर खेला करते थे, दिन भर पढ़ाई करते थे, वो सारी एक्टिविटी हमारी बंद हो चुकी है। उसके साथ साथ हमारे जो फैक्ट्रीज है, जो कंस्ट्रक्शन जो काम है, जो मैन्युफैक्चरिंग काम है, जो मार्केट है, वो सारे बंद हो चुके हैं। ये बंद होने से हमारे काम चले गए हैं, और जब काम चला गया है तो हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो हमारे साथ क्या क्या हुआ है, काम भी नहीं है हमारे पास, और क्योंकि काम नहीं है तो पैसा नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है,
जो स्कूल नहीं जा रहा, ये लोग जो दिन भर घर से बाहर रहते थे, बाहर काम करने जाते थे, जो बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल में जाके अपना एग्रेशन निकालते थे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, अपना मन की बात कर लेते थे, वो सब आज एक घर में बंद हो गए हैं। इनके बंद होने से हमारे प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुके हैं। इनके बढ़ने से ही, ये सब होने से ही हमारी जो समस्याएं है आजकल, जो साइको सोशल एस्पेक्ट जो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो समस्याएं है वो इन सब चीजों से बढ़ चुकी है। उसके अलावा हमारे पास खाना नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पास पैसा हो, लेकिन बाहर मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, हम सामान कैसे खरीदेंगे? घर में जितने लोग बाहर जाते थे वो सब आज लोग घर में हैं, कोई भी बाहर नहीं जा रहा। मतलब यदि आपके पास 1 रूम किचन है तो 1 रूम किचन में 4-5 लोग बैठे हुए हैं। आप टीवी भी देख सकते हो, आप मोबाइल भी देख सकते हो, लेकिन कितना देर देखोगे? आप लोगों से बात कर सकते हो, कितना देर बात करोगे? आप शांत रहोगे, कितना देर शांत रहोगे? ये सब चीजें इतनी ज्यादा परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है कि अब हम लोग अपना आपा खो रहे हैं। नो प्लेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। हमारे पास अभी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। पहले हम बाहर चले जाते थे, थोड़ा वॉकिंग कर लेते थे तो काफी अच्छा हो जाता था, या हम थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते थे, कुछ एक्सरसाइज कर लेते थे, योगा कर लेते थे, तो हमारा ढेर सारा जो इरिटेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाता था। लेकिन अब वो सब बंद होने की वजह से सारा इरिटेशन, सारा जो फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग में, हमारे मन में ही भरा हुआ है। इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है। अभी पहले जो 5% डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था, वो आज 25%, 30% डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है। हस्बैंड पत्नी को मारते हैं, पत्नी हस्बैंड को मारते हैं, बच्चे एक दूसरे झगड़ा करते हैं, बच्चे मम्मी को मारते हैं, बच्चे डैडी को मारते हैं, या मम्मी डैडी दोनों मिलकर बच्चों को मारते हैं। ये आपस में जो झगड़ा हो रहा है इतना ज्यादा हो रहा है कि हमें उस हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है या पुलिस केस हो रहा है। तो ये जो चीजें है, ये हमारा सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हम घर के अंदर बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते। हमारा जो एक्सप्रेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें हमारे साथ हो रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने कुछ चीजें करनी है जिसकी वजह से हमारा ढेर सारी जो समस्याएं है समाधान हो सकता है। आप घर में भी रह सकते हो और घर में आप अच्छे से रह सकते हो, आप सबसे मिलकर रह सकते हो, आप अपना मेंटल हेल्थ ठीक कर सकते हो, आप अपना डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसे कम कर सकते हो, आप जो घर में जो इरिटेशन हो रहा है उसको कम कर सकते हो, घर में जो आपसे चिड़चिड़ हो रही है उसे आप कम कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं? चेक आउट फॉर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हमको क्या करना है? पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना है, मतलब सकारात्मक सोच। हमको ऐसा सोचना है कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है। यदि हम लोग अच्छी बातें सोचेंगे, जैसे मैंने आपको न्यूज चैनल के बारे में बताया था, तो न्यूज चैनल क्या कर रहा है? हमें डेड बॉडी दिखा रहा है, हमको डेड बॉडी जलती हुई दिखा रहा है, हमको डेड बॉडी को गड़ाने के लिए, जमीन में गड़ाने के लिए जमीन नहीं है, जगह नहीं है, ये दिखा रहा है। इससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमको इतनी तकलीफ हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और मेरे मरने से मेरे साथ भी ऐसा हो। तो ये जो सोच है, इस सोच को अवॉइड करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने न्यूज चैनल देखना थोड़ा कम कर देना है। यदि आप 100% देखते हैं तो उससे 25% देखो, 75% बंद कर दो। इससे क्या होगा कि आपके मेंटल हेल्थ में अच्छा होगा, आपकी जो सोच है वो सोच में वो सुधार आएगा, और आपकी जो सोचने की जो एबिलिटी है, आपकी सोचने का जो तरीका है उसमें भी सुधार आएगा। शेयरिंग ऑफ थॉट। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके मन में कोई बात आ रही, कैसे भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अच्छी बात है, कोई कहानी है, छोटी कहानी, बड़ी कहानी है, या जोक है, चुटकुले है, वो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। घर में जो व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है, जो व्यक्ति आपसे नजदीक है, जो बच्चा जो बात कर रहा है, उस बच्चे से आप बात करने की कोशिश कीजिए। उसको बताइए कि मुझे ऐसी तकलीफ हो गई है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है। आप लोगों से बात कीजिए, जो पॉसिबल हो वो बात कीजिए। जितने लोग हैं उन लोगों से बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि घर के बाहर लोग हैं, मैं घर के बाहर जाऊँ और बात करूँ, जो कोई जरूरत नहीं है। घर के अंदर जो लोग हैं आप उनसे बात कीजिए। घर के जो फैमिली मेंबर है, मम्मी है, डैडी है, पत्नी है, हस्बैंड है, बच्चा है, बच्ची है, कोई दूसरे लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए, और आपके मन में जो भी बात आ रही है उससे बात कीजिए और उसके साथ अपने थॉट को शेयर कीजिए।
गो फॉर सम लाइट एक्सरसाइज या योगा। घर में जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप एक जगह पे थोड़ी देर के लिए कूद सकते हैं। आप रस्सी ले लीजिए, रस्सी कूद जो स्किपिंग रोप बोलते हैं, आप रस्सी लेकर आप थोड़ी देर के लिए कूद सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। उसमें भी उससे ये होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके जो ब्रेन में जब ब्लड और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चलेगी तो आपके नॉर्मल होने की, आपके थॉट अच्छे होने की, आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ने की ज्यादा संभावना है। ऐसा करने से भी आपके ढेर सारी दिक्कतें कम हो सकती है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हो। योगा पूरा नहीं करना है, आजकल टीवी में मोबाइल में ढेर सारे योगा एडवाइस, योगा सजेशन, योगा आसन लोग दिखाते हैं। आप उसकी मदद से अपना योगा कर सकते हैं, और योगा करने से भी आपका ढेर सारा टाइम भी कटेगा, आपकी सोच भी बदलेगी, और घर में जो लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप ये सब करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो बॉडी मूवमेंट है उसमें ढेर सारे आपको चेंजेस दिखाई देंगे और आपको महसूस होंगे। हमारे फैमिली में हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ हो जाता है, कोई नुकसान होता है, कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई, तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है, ये पत्नी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हस्बैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या मम्मी रिस्पॉन्सिबल है। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसको हम ब्लेम गेमिंग बोलते हैं। तो इसको आप धीरे धीरे बंद करना होगा। ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम एक दूसरे के ब्लेम करने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भागने से हमारा काम नहीं चलेगा। क्या करना होगा, घर में जितने लोग हैं सबका ध्यान रखना होगा, सबका ध्यान सबके लिए रखना है। मैंने अपना ध्यान भी रखना है, अपने साथ साथ मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी लड़कियां हैं, मेरी मम्मी है, मेरे डैडी है, उनका भी ध्यान रखना है। मम्मी डैडी ने मेरा ध्यान रखना है, मेरे बच्चों ने मेरा ध्यान रखना है। इस प्रकार से जब हम सबका ध्यान रखेंगे तो हमारे ढेर सारे प्रॉब्लम, ढेर सारे थॉट हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारे ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बी अ फ्रेंड इन फैमिली। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो पापा होते हैं वो हमेशा पापा की तरफ बिहेव करते हैं, या घर में बॉस है, ऑफिस में बॉस है तो घर में भी बॉस जैसा बिहेव करते हैं, या मम्मी कहीं काम करती है तो और मम्मी बॉस है तो मम्मी घर में भी बॉस जैसा बिहेव करती है। तो हमको ये जो ट्रेंड्स है इसको चेंज करना है, और आपने एज अ फ्रेंड घर में फैमिली में बिहेव करना है, ताकि सब लोग आपको फ्रेंड समझे, फ्रेंड जैसा आपसे बात करे, फ्रेंड जैसा अपने मन की बात आपसे कर सके, और अपने मन की जो सोच है, अपने मन की जो बात है, मन में जो विचार आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर सके। यदि आप शेयर करोगे तो शेयर करने से ये होगा कि उनके मन में यदि कोई नकारात्मक विचार आ रहे हैं उसको आप दूर कर सकते हो। यदि उनके मन में गुस्सा आ रहा है, जो गुस्सा जमा हो रहा है, उस गुस्सा को आप यदि समझेंगे तो आप आने वाले समय में जो ढेर सारा गुस्सा जो ब्लास्ट होने वाला था उस ब्लास्ट से आप बच सकते हैं। या आप जब बोलते हैं तो दूसरे लोगों ने सुनना है। यदि आप थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप अपने मन का जो भड़ास है उसे बाहर निकाल रहे हैं, और भड़ास को आप जमा नहीं कर रहे हैं। यदि आप भड़ास को बाहर निकाल दोगे तो आपके पास भड़ास अकुमुलेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा, और जब जमा नहीं होगा तो आपको फिर इरिटेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, और आप एज अच्छे फ्रेंडली फैमिली में रह सकते हैं, और सब आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, और आपको एज अ फैमिली फ्रेंड भी मानेंगे, और अपनी बात भी करेंगे, आपको एडवाइस भी देंगे, अपने मन की सकारात्मक सोच को भी बता सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे मन में और हमारे बिहेवियर में ढेर सारे चेंजेस आ जाएंगे, ढेर सारे पॉजिटिव विचार आ जाएंगे, ढेर सारे आपके जो एक्टिविटीज है वो चेंज हो जाएंगे, आपके जो मन में जो थॉट आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। और यदि ये सब चेंज होते हैं तो ढेर सारे फायदा हम सबको होगा। उसके बाद नेक्स्ट एडवाइस है बी एक्टिव। बी एक्टिव का मतलब यह हुआ कि यदि आप घर में बैठेंगे तो मान लो 1 BHK है तो आप क्या करोगे, इस रूम से उस रूम जाओगे, उस रूम से इस रूम जाओगे, और कुछ करने के लिए नहीं है। और क्या होगा कि आप टीवी देख सकते हो तो आपने टीवी कितना देखना है, या आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल में आप मल्टीमीडिया कितना देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हैं कितना देख रहे हो।
ये सब ढेर सारे प्रॉब्लम है। आप क्या कर सकते हो, आप ये सब बंद करके थोड़ी देर के टीवी बंद कर लो, थोड़ा सा एक्टिविटी कर लो, कोई गेम खेलो बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, हस्बैंड के साथ, मम्मी डैडी के साथ, जो भी न्यू गेम आप समझ सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है वो समझ लो। आप किचन में जाके पानी लाकर सबको पानी पिला दीजिए, या बोलिए कि आज मैं चाय बनाता हूँ, चलिए चाय पियेंगे, या बोलिए कि आज शाम का खाना मैं बनाता हूँ, भले ही गंदा खाना बने, भले ही रोटी जरा जल जाए, लेकिन यदि आप ऐसा कहेंगे कि हाँ आज का खाना मैं बनाता हूँ, तो सबके मन में विचार चेंज होगा, सब खुश हो जाएंगे, सबका जो अच्छा लगेगा, लोग मदद भी करने के लिए आएंगे। इसी से जो दूसरे लोग वो भी ऐसा कह सकते हैं कि चलो आज मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, या आज कोई दूसरी अच्छी चीज बनाते हैं, या आज शाम का जो ब्रंच है वो मैं बनाता हूँ, या आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूँ। इसके क्या होता है कि आप एक्टिव हो जाएंगे और आप किचन में जाओगे, कुछ काम करोगे, आपके थॉट चेंज हो जाएंगे, आपका जो इरिटेशन है वो कम हो जाएगा, आपका जो थॉट अकोमोडेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। ऐसे करने से हमारे पास ढेर सारी न्यू एनर्जी जमा हो जाएगी, नई एनर्जी जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। बी ए गुड लिसनर। गुड लिसनर मतलब आप यदि आपके साथ कोई बात कर रहे हैं, या कोई मम्मी आपसे कुछ बात करना चाहती है, पत्नी आपसे बात करना चाहती है, हस्बैंड बात करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखें और उनसे बात करें, उनको सुने वो क्या कहना चाहते हैं। कोई कहानी सुनाना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहते हैं, सुनिए। सुनने से भी दूसरे को बोलने से उनको अच्छा भी लगेगा, बोलने का मौका मिलेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं। ये जो सुनने का जो तरीका है ये भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप गुड लिसनर है तो इससे ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी वहां से मिल जाए, पॉजिटिव आइडिया मिल जाए, पॉजिटिव कहानी मिल जाए, जिससे हमारे मन में और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाए, हम कोई अच्छा काम करने लग जाए, हमारा इरिटेशन कम हो जाए। टॉकिंग टू एवरीबडी। आप घर में सबसे बात कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा, पत्नी से बात कीजिए, बच्चे से बात कीजिए, लड़कियों से बात कीजिए, लड़कों से बात कीजिए, मम्मी से बात कीजिए, पापा से बात, हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। तो क्या होगा, जब अलग अलग व्यक्तियों से आप बात करोगे तो एक ही बात को आप 10 लोगों से बात कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना टोन बदलना है, उसकी लैंग्वेज बदलनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो एक कहानी या एक सेंटेंस को आप 10 प्रकार से बदल के 10 लोगों से बात कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि 10 टाइम, यदि मान लो एक बात बोलने के लिए आपको 5 मिनट लगते हैं, तो आप 10 बार ऐसे बात 5 मिनट आप गुजार सकते हो। इतना बोलने से भी ढेर सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा जब आप बात करोगे सबके साथ तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, वो भी आपकी बात सुनने के लिए टाइम निकालेंगे, वो भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो ऐसा करके आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाएगा और दूसरे लोग भी आपसे बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बी हैप्पी विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मालूम है आपको कि चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, दरवाजे बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, बाहर खरीदने के लिए ज्यादा सामान नहीं है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो घर में जितने ऑप्शंस है, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है, खाना बनाने के लिए जितनी चीजें है, इंटरटेनमेंट करने के लिए जितनी चीजें है, या बात करने के लिए जितने लोग हैं, उतने में आप खुश रहने की कोशिश करो। जितनी चीजें हमारे पास है उतने में खुश रहने की आदत लगाओ। अब हमको मालूम हो गया है कि यदि मॉल बंद होता है तो भी हम लोग जीवित रह सकते हैं। यदि हमको पिज्जा और बर्गर नहीं मिलते हैं खाने के लिए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। यदि हम थिएटर में मूवी देखने नहीं जाते हैं तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। यदि हम रोड पर घूमने के लिए नहीं जाते हैं तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। हम 1 साल से घर के अंदर है और आज हम जीवित है। तो सभी बात का एक सार है कि हम लोग जीवित रह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस से। तो जो चीज है उसके साथ खुश रहिए। गुस्सा करने से क्या फायदा? अल्टीमेटली गुस्सा करने से भी हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बढ़ने वाले नहीं है। यदि आप गुस्सा करोगे तो क्या जो रोटी बनाने की जो चीज है क्या बढ़ जाएगी? क्या पिज्जा बनाने का सामान आपके घर में आ जाएगा? क्या बर्गर बनाने का सामान आपके पास आ जाएगा? क्या आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी? यदि आप गुस्सा करोगे तो क्या लॉकडाउन हट जाएगा? नहीं, कुछ नहीं हटेगा और सिचुएशन में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। इससे केवल आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका गुस्सा बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है उसके लिए आपके साथ भी लोगों के रिश्ते जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। इसीलिए खुश रहिए। जो चीज है, जितनी चीजें जैसे बनी है, जैसे मिली है,
उतने में खुश रहने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टॉक अबाउट पॉजिटिव न्यूज कमिंग फ्रॉम द मीडिया। अब मीडिया में जो भी सकारात्मक न्यूज है उसके तरफ ध्यान दीजिए, उसको सुनिए। जैसे अभी हमारे यहाँ भारत में 3 से 4 लाख नए केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए जा रहे हैं पूरे भारत में, और वहां पे ये भी बताया जा रहा है कि 3 लाख में से 2.5 लाख पेशेंट अच्छे होकर घर जा रहे हैं। 2.5 लाख, सोचिए, ये 75% से भी ज्यादा मात्रा है जो लोग अच्छे होकर घर जा रहे हैं। पॉजिटिव हुई है, कोरोना पॉजिटिव हुई है, सीवियर कंडीशन हुई है, उनको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, उनको भी रेमडेसिविर की तकलीफ हुई, उनको भी मिला, लेकिन वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो न्यूज है, इस प्रकार के न्यूज को ध्यान दीजिए और सोचिए कि यहाँ 3 लाख लोग बीमार हो रहे हैं, वहां पे 2.5 लाख लोग अच्छे होकर भी जा रहे हैं। तो ये हमको सांत्वना देगा कि हाँ भाई, अच्छे लोग आ रहे हैं, मतलब यदि मुझे कुछ होता है, मुझे कोरोना होता है, तो मैं भी अच्छा होके घर आ सकता हूँ, मुझे मेरे मन में भी पॉजिटिव विचार पैदा होंगे। मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद एवरीबडी। घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, हस्बैंड है, मम्मी है, डैडी है, सबके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करो। ये अच्छा टाइम आपको मिला हुआ है कि सबसे बात करने का। अभी जब हम दिन भर काम करने जाते थे सवेरे 7 बजे, जैसे मुंबई जैसे जगहों में ये होता था कि यदि आपको ऑफिस जाना है तो आपको सवेरे घर से 6 बजे निकलना है, 2 घंटा आपको ट्रेन में ट्रेवल करना है, आधा घंटा आपको बस में ट्रेवल करना है, उसके बाद 9 बजे या 10 बजे आप ऑफिस पहुंचोगे। दिन भर काम करने के बाद शाम को 5:30 बजे या शाम को 6 बजे आधा घंटा बस से चलोगे, 2 घंटा आप ट्रेन में चलोगे, रात को 9 बजे आप घर पहुंचोगे। आपको मम्मी से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, पापा से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, पत्नी से बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, हस्बैंड से बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, बच्चों के साथ टाइम गुजारने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि आपको भगवान ने, ईश्वर ने आपको टाइम दिया है, सबके साथ बात करने के लिए टाइम दिया है, सबके साथ वक्त गुजारने का टाइम दिया है, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने का टाइम दिया हुआ है। ऐसा सोचिए और सबके साथ अच्छा बात कीजिए। आप जो कहना चाह रहे थे वो कहिए। आप ये कहिए, मम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप ये कहिए, पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप ये भी कहिए कि बेटा, बच्चा, लड़का, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जो आपने कभी नहीं बोले वो आज आप कहिए कि मैं बहुत बिजी था, मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाया, या मैं आपके साथ एक दिन घर में बैठना चाह रहा था, मैं नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन आज आप बैठ रहे हो। या कोई कहानी सुनाना चाह रहे हो, या अपनी कोई स्टोरी होगी कि ऑफिस में ऐसे हुआ था, या उस दिन ऐसा एक्सीडेंट हो गया, धन्यवाद दो भगवान को कि मैं उस एक्सीडेंट से बच गया, वो एक्सीडेंट मेरे आंखों के सामने हुआ है। आप ऐसी बातें घर को बता के अपना रिलेशन अच्छा मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद ये सब करने के बाद बहुत ज्यादा होता है कि हम जब घर में रहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर हमको गुस्सा आ जाता है। पत्नी ने चाय गिरा दिया, पति ने चाय नहीं बनाया, पति ने चाय में शक्कर ज्यादा डाल दिया, या शक्कर कम कर दिया, दूध कम कर दिया, मीठा चाय नहीं बना। ज्यादा मीठा कर दिया, बना, आपको किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। ऐसे ढेर सारे इन्वायरमेंट है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको गुस्सा आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। यह जो गुस्सा है इसको हम लोग कंट्रोल करने कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपेयर फॉर द प्रोवोकिंग सिचुएशन। मैंने चाय बनाया, अब मेरी पत्नी तो बच्चे हैं, चाय बनाया, चाय सबको खिलाया। उसको मालूम कि कोई यदि चाय बना के लाता है तो क्या हो सकता है आपको बोल दे कि पापा आप बहुत खराब चाय बनाते हो। आपकी पत्नी बोल सकती है कि आपको चाय बनाना नहीं आता, या मम्मी पापा आपको बोल सकते हैं कि आप कितनी खराब चाय बनाते हो सकता है। तो जब ऐसा हो तो आप सोचिए यदि ऐसा आपके साथ होगा तो क्या होगा। तो ये प्रोवोकिंग सिचुएशन है। कोई आपको बोले कि आप बहुत खराब चाय बनाते हो, तो ये प्रोवोक कर रहा है कोई आपको गुस्सा करने के लिए। तो आपने पहले से ही तैयार हो जाना है कि कोई बोलेगा कि चाय बहुत खराब बनी है, आपको चाय बनाना नहीं आता। आप पहले से सोच के रखिए
यदि आपने पहले सोचा तो आपको मालूम है कि आंसर कैसे आने वाला है, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी ऐसे कहने वाली है, मेरे बच्चा ऐसे कहने वाला है, मेरे डैडी ऐसे कहने वाले, मेरे मम्मी ऐसे कहने वाले हैं, ये मुझे पहले से मालूम है। तो उसका जो आने वाला जो अटैक है आपके ऊपर, उस अटैक का जो 50% असर है, इफेक्ट है, वो कम हो जाएगा, और बाकी जो 50% है उससे हम लोग आप आगे फाइट करेंगे। तरह जैसे कोई आपको बोलता है कि आप बहुत खराब हो, आप बहुत खराब चाय बनाते हो, तो ये जो आने से आपको गुस्सा आ रहा है, 50% आपने मैनेज कर लिया, अब 50% जो अटैक हुआ है आपके ऊपर, वो 50% आपको अराउज करेगा गुस्सा करने के लिए। तो हमको उससे कोप करना है। कैसे कोपिंग करेंगे? उसके लिए हमको अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। हमने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐसा करके आप कंट्रोल करने की अपने आप को कोशिश करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं, हम 25% कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे में आप जब कोशिश करोगे तो 25% कंट्रोल हो जाएगा। तो मतलब आप गुस्सा कितना बचा है? ओनली 25%। देखिए, और बस 100% कंट्रोल, पहले गुस्सा आ रहा था, 50% आपने बोला कि मुझे मालूम है कि क्या उत्तर आने वाला है, तो जैसे वो आया 50% आपने गुस्सा कंट्रोल कर लिया है। आप और केवल 50% गुस्सा आपके ऊपर अटैक कर रहा है। उसके बाद जब आपने बोला कि ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, मैं गुस्सा कंट्रोल कर, अब 25% के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? बी लॉजिकल। क्या लॉजिकल लगाना है? हो सकता है मेरे से चाय खराब बनी हो सकता है मैंने शक्कर ज्यादा डाल दिया, हो सकता है मैंने चाय पत्ती कम कर दिया, हो सकता है मैंने पानी ज्यादा डाल दिया, हो सकता है मैंने ज्यादा उबाल दिया, या मैंने बराबर उबाला नहीं, या दूध मैंने कम कर दिया। लॉजिक लगाइए। हो सकता है ऐसे, जब आपकी पत्नी ने पहली बार आपको चाय पिलाया था, वो चाय भी ऐसी थी, उस समय आपने कैसे जवाब दिया था? सोचिए। ये कि आपके बच्चे ने आपके लिए कभी चाय बनाया होगा तो आपने कैसा जवाब दिया था? या ग्लास टूट गई होगी, किसी के हाथ से कप गिर गया, गिर सकता है, कप है, कांच की कप है, चीनी मिट्टी कप है, गिरेगा तो टूटेगा ही। तो हम अपने आप को समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कुछ किसी प्रकार के लॉजिक हमने तैयार करना है। लॉजिक तैयार करेंगे तो हमारे ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सी सम अदर ऑप्शन। आप दूसरे ऑप्शन देखिए कि मैं चाय कैसे अच्छी बना सकता हूँ, अच्छी चाय कैसे बन सकती है। आप पूछिए पति से कि भाई आप अच्छी चाय कैसे बनाते हो। आप मम्मी से पूछिए, मम्मी आप ऐसी अच्छी चाय कैसे बनाते हो, अच्छी चाय कैसे बनाना चाहिए, चलो आप बनाओ मैं देखता हूँ। ऐसे भी हम विचार कर सकते हैं, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। टेक लॉन्ग ब्रीथ। हमें एक लंबी सांस लेनी है। गुस्सा आ रहा है, जैसे पत्नी ने कहा कि आपको चाय बनाना नहीं आता है, या मम्मी ने कहा चाय, तो एक लंबी सांस लीजिए, और जो आने वाला जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, आने वाला जो इमीडिएट इम्पल्सिविटी है, उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? उस इम्पल्सिविटी को डिलेट करके। जैसे आप लंबी सांस लेते हो तो वो इम्पल्सिविटी डिलेट हो जाती है, थोड़ा देर से आती है, तो उतनी देर में आपको टाइम मिल जाता है दूसरा ऑप्शन करने का, दूसरा लॉजिक लगाने का, दूसरी बातें सोचने का आपको टाइम मिल जाता है। या हम 1 से 10 काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। जैसे हम टाइम काउंट करते हैं, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। आपको जो इम्पल्सिविटी आ रही है गुस्सा करने की, उसको डिलीट करने के लिए हमको 10 सेकंड का टाइम मिला है, और 10 सेकंड तक हम सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए। हम बोल सकते हैं कि मैं दोबारा चाय, अच्छी चाय बनाऊंगा। ये जो सेंटेंस हमको लाना है, ये जो बोलना है, बोलने के लिए हमको हमको मौका मिल जाएगा, हमको टाइम मिल जाएगा कि हम क्या सोच सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। थिंक अबाउट सम अदर इंसिडेंट। आप ये सोचिए कि इसके साथ दूसरा क्या हो रहा है। दूसरे व्यक्ति ने चाय बनाया तो क्या हुआ था, या मैं रोटी बनाऊंगा तो कैसे होगा, मैं सब्जी बनाऊंगा तो क्या होगा। या उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन मैंने चाय बनाया था और सब लोगों ने मेरी तारीफ किया था। उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आपने जब चाय बनाया था, सबने कहा था अच्छी चाय है, तो क्या हुआ था उस दिन, आपने कैसे चाय बनाए थे, उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। और यदि ये सब नहीं हो रहा है तो इफ पॉसिबल डू नॉट स्पीक। बात मत करो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, अपने आप को कंट्रोल करो। एक्सेप्ट दैट अदर पीपल कैन मेक द मिस्टेक और फॉल्ट। आप एक्सेप्ट कर लो कि गलतियां सबसे हो सकती है। मम्मी से गलती हो सकती है, पत्नी से गलती हो सकती है, बच्चे से गलती हो सकती है,
कांच का गिलास सबसे टूट सकता है, चीनी का कप है दूसरों से टूट सकता है, मेरे से भी टूट सकता है। खराब चाय दूसरों से बन सकती है, मेरे से भी बन सकती है। ये सब है। तो सर माफ कीजिएगा सर, बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ सर, हम लोग टाइम के बियॉन्ड भी चल रहे हैं सर, थोड़ा सा 5 मिनट में कंक्लूड करें सर। ओके 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 ठीक है। मैं एक्चुअली घड़ी देख रहा था तो मेरे को ये स्क्रीन में घड़ी नहीं दिख रही, इसके लिए थोड़ा टाइम दिख रहा है। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस 2 ही स्लाइड है मेरा, देखो 2 ही स्लाइड है तो मैं फिनिश करता हूँ। 2 ही स्लाइड में अभी फिनिश करता हूँ इसको। यूज ह्यूमर फॉर मेकिंग एनवायरमेंट। अभी क्या होता है कि जब आपका एनवायरमेंट बहुत इरिटेटिव हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाए, आप किसी को चुटकुले सुना के जोक मार के भी आप उस एनवायरमेंट को आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। उसका दूसरा यह है, ये कम्युनिकेशन स्किल हमको डेवलप करनी बहुत जरूरी है। किससे कैसे बात किया जाए। पत्नी को आप बोल सकते हैं कि विल यू मेक अ टी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसे जो हमको बात करना है, आजकल हम ऐसा बात करना भूल गए हैं, हम ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों को ऑर्डर देते हैं कि भाई क्या मेरे लिए चाय बना के लाओ, तुमको इतना भी नहीं समझता है, तुम मेरे लिए चाय नहीं बनाओगे, ऐसा बात करते हैं। तो हमको कम्युनिकेशन से वापस हमको सीखनी चाहिए, वापस हमको बात करना सीखना है। आप जरा सोचिए कि जब आपने कब कहा था कि विल यू मेक अ टी फॉर मी, ये जो सेंटेंस है हम बोलना भूल गए हैं, हम नहीं बोलते हैं। और ऐसा करने से हमारा जो सिचुएशन है बहुत खराब होते जा रहा है, और हमारा जो एंगर है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो जमा हो रहा है। तो दिस टाइम आल्सो विल गो, यह समय भी चला जाएगा। ये जो कोरोना है, हम इससे बड़े बड़े खतरनाक समय देखते हैं, यह खतरनाक समय भी चला जाएगा। अभी हमारे यहाँ वैक्सीन बन गया है, अभी हमारे यहाँ DRDO ने D2DG करके एक मेडिसिन बना लिया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो मेडिसिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है, कोरोना को बढ़ने से रोकता है। तो यदि वो मेडिसिन मात्रा में मिल जाएगा तो हम अच्छे हो सकते हैं। और यदि वैक्सीन की स्पीड बढ़ाने की बात हो रही है, यदि वैक्सीन की स्पीड बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो जाएगा, तो सबको वैक्सीन लग जाएगी। हो सकता है 7-8 महीने में सबको वैक्सीन मिल जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू किया हुआ, जो नंबर है 180059990019। यह मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, जो टोल फ्री लाइन है। इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी फोन करके कॉल कर सकता है। यह 24 आवर्स चालू है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और भारत की अप्रोक्सीमेटली सभी भाषाओं में अवेलेबल है। और आप ये अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से बात करके आप अपने मन की बातों को रख सकते हैं। मन में जो गुस्सा आ रहा है, मन में जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो आप रखकर वो आप बात कर सकते हो। और यह बात करके आप अपने मन की बातों को, जो आपका मन है, जो हल्का कर सकते हो। और वो हल्का करने से आपको अच्छा लगेगा, और आपका जो टेंशन है वो टेंशन भी आपका कम हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको फिनिश करता हूँ। और मैं राजेश कुमार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू राजेश। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सारगर्भित और इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन आपके द्वारा हमारे सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया गया, और सभी प्रतिभागियों ने धैर्यपूर्वक आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना है। और मुझे लगता है कि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर लोग अपने घरों में करेंगे, और अपने मित्रों को भी जरूर इस जानकारी को साझा करेंगे। लेकिन इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अधिकारी श्री अंबिका प्रसाद पटनायक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटनायक सर नमस्कार। और अगर आप तक हमारी आवाज जा रही हो सर, तो प्लीज लगातार आप इस मीटिंग में हमारे साथ बने रहें सर। समय तो वैसे कम है सर, लेकिन 2 मिनट में आप अपनी बात, अपने आशीर्वाद हम तक पहुंचाएं सर। श्री पटनायक सर। थैंक यू वेरी मच। am I audible? Yes sir, you are audible sir. Yes sir, you are audible. First I congratulate to the organizing institution CRC Gorakhpur for organizing this morning topic, for which we are in the need at each moment in this pandemic situation. In this pandemic situation, each and everyone needs some type of psychological support, especially the children with disability need more for that.
it is my sincere request to each and every rehabilitation professor, they should be in constant touch with the persons with disability, children with disability at this moment, so that the family or the parents will get sufficient relief and will be satisfied that we are delivering the required service that they are entitled to receive. Thank you all. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट फोर्थकमिंग वेबिनार में हम आपके आशीर्वाद को थोड़ा सा बृहद स्तर पर लें, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि आप जैसे अधिकारी सीआरसी गोरखपुर के वेबिनार में जुड़ करके अगर अपनी बातों को रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा दूरी तक हम अपनी बात तक अपनी आवाज को पहुंचा पाएंगे। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करता हूं सीआरसी गोरखपुर के पुनर्वास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव सर को कि सर आप आए, और चूंकि हम समय के बाहर चल रहे हैं इसलिए एटलीस्ट एक प्रश्न बनता है सर। एक प्रश्न आज के हमारे साथ वक्ता के रूप में जुड़े रहे श्री दशरथ चौधरी सर से एक प्रश्न लें जो हमारे प्रतिभागियों के चैट बॉक्स में आए हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे सर। श्री राजेश कुमार यादव सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को सादर नमस्कार करता हूं और श्री दशरथ चौधरी सर को भी नमस्कार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में प्रश्न तो बहुत सारे आए हुए थे हमारे गार्जियंस के, एक प्रश्न लेकिन सर ने चूंकि अनुमति प्रदान की है तो एक ही प्रश्न मैं पूछूंगा। हमारे एक कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावक हैं श्री सतीश वर्मा जी। सतीश वर्मा जी ने यहाँ पे प्रश्न किया हुआ था कि कोविड की जो ये दूसरी लहर चल रही है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कोविड की एक तीसरी लहर भी आएगी जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस वजह से बहुत सारे हमारे दिव्यांग बच्चों के माता पिता घबराए हुए हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के तीसरी लहर में हमारे बच्चे प्रभावित हो जाएं, उन्हें हम बचा पाए ना बचा पाए। तो इस संदर्भ में इन्होंने पूछा है कि किस प्रकार से उनके जो मनोसामाजिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाया जा सकता है कि तीसरी लहर आने पर उन्हें क्या करना है। इस संदर्भ में इन्होंने जानकारी चाहिए। श्री दशरथ चौधरी सर। धन्यवाद। ये तो बात पक्की है कि गवर्नमेंट और जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो लोग कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है जो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है, और वो शायद आज जो लहर है उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पहली बार कोरोना आया था तब हमको किसी ने कहा नहीं था कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन कुछ कंट्रीज के लोगों ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी, और आज हमारे यहाँ दूसरी लहर आ गई है। उसे हम देख रहे हैं और आपको देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ कितनी कंडीशन बहुत बुरी है। यही बात हमारे पीडब्ल्यूआईडी की, तो ये हो सकता है कि हमको जैसे कि पहले से हम प्रिवेंशन ले रहे हैं, हम घर में हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों से होम एक्टिविटी करवा रहे हैं, इवन जैसे मैंने कहा कि चाय बनाना है तो चाय बनाने की आदत लगा रहे हैं। ये सब करते हुए हम लोग अपने बच्चों को बचा सकते हैं। यदि आप सोसाइटी में नहीं घूमोगे, यदि आप मार्केट में नहीं जाओगे, यदि आप सोशल डिस्टेंस का नियम फॉलो करेंगे, यदि आप फेस मास्क लगाओगे, हम अभी भी बचे रहेंगे और आगे भी बचे रहेंगे। जो लोगों ने सोशल डिस्टेंस का नियम नहीं फॉलो किया है, जो लोगों ने जबरदस्ती गवर्नमेंट के नियम को उल्लंघन करके मार्केट में घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, वही लोग आज आपको हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो किया है वो लोग अभी भी जीवित है, वो लोग भी घर में है, और वो लोग आपको हॉस्पिटल में दिखाई नहीं देंगे। जो लोग आपको हॉस्पिटल में दिखाई दे रहे हैं वो लोगों ने ये कह के रोड पे घूम रहे थे कि मुझे कभी कोरोना नहीं होगा, कोरोना क्या चीज है, मैं कोरोना का बाप हूँ, ऐसे बोल के हम लोग रास्ते में घूमे हैं, लोगों से झगड़ा किया है, पुलिस से झगड़ा किया है, डॉक्टर के साथ मारपीट की है, मार्केट में जाके भीड़ किया है, जो इलेक्शन में जाके हमने भीड़ किया है, हरिद्वार में भीड़ किया है, दूसरे मंदिरों में जाके हमने भीड़ किया है, दूसरे जो पॉलिटिकल जो पार्टी के जो भीड़ होती है वहां जाके भीड़ किया है, और यही लोग आज हॉस्पिटल में है। तो मेरा एडवाइस सिर्फ इतना है कि आप घर पे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो करो, फेस मास्क पर रहो, और जितनी चीज हमारे पास है उतने में खुश रहने की कोशिश करो, सबसे बात करो, सबके मन की बात सुनो और अपने मन की बात सबको बताओ। हम सब जीवित रहेंगे और हम सब लोग अभी 6 महीना और 10 महीने के बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे। इतना चिंता मत करो, बस नियम फॉलो करो। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी खुद कुछ करें और गवर्नमेंट की मदद करें। इसके साथ एक रेखा सेठी करके मैडम है, उन्होंने कहा है कि लड़कियां ही केवल चाय बनाती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के जो लड़के हैं
वो लोगों ने भी घर में मम्मी की, भाभी की, बहनों की मदद करना शुरू कर दिया है। वो लोग भी चाय बनाते हैं। तो यदि आपकी शादी हो गई है और आपका बेटा है तो आप बेटे को बोलिए कि आप चाय बनाएं, तो उसको आदत बन जाएगी चाय बनाने की, तो वो भी अपने बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी मम्मी के लिए चाय बनाएगा। सिचुएशन चेंज हो रही है, सोशल स्टिग्मा बाहर जा रहा है और अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है, तो सब लोग चाय बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य को दिया है सर। हमारे सभी अभिभावक जरूर लाभान्वित होंगे। सभी के प्रश्नों का आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है सर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे की तरफ संचालित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश कुमार जी को कि वो कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएं। सभी लोगों को हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा विलंब न करते हुए अब मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नागेंद्र पांडे जी, विशेष शिक्षक सीआरसी गोरखपुर। आप आए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और कार्यक्रम को समापन की घोषणा करें। श्री नागेंद्र पांडे जी। थैंक यू सर, बहुत जी बहुत थैंक यू। धन्यवाद। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर द्वारा आयोजित आज इस 82वें ई काउंसलिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। सर्वप्रथम मैं सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर एनआईपीवीडी देहरादून को, जिनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में आज इस तरीके के ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन सीआरसी गोरखपुर अपने सफलतम ढंग से कर पा रही है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि नोटिस स्पीकर के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन सीआरसी भुवनेश्वर से। सर का उद्बोधन हम सभी के लिए बड़ा ही सारगर्भित तथा तथ्यपरक रहा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री रवि कुमार सर को। सर का सहयोग तथा मार्गदर्शन हम सभी को बराबर तथा उत्साहवर्धन हम सभी को बराबर मिलता रहा है, जिससे हम इस तरीके के कार्यक्रम को अंजाम दे पा रहे हैं। साथ ही साथ वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे श्री दशरथ चौधरी साहब, लेक्चरर इन रिहेबिलिटेशनल साइकोलॉजी कम ऑफिसर इंचार्ज एनआईपीआईडी आरसी नवी मुंबई को। सर ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से, बड़े ही सहज भाव में, सरलतम ढंग से अपनी बातों को हमारे बीच आज दिया है, साझा किया है, आत्मसात हम सभी को कराया है। हम सभी के द्वारा जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे लाभार्थी, सेवार्थी तथा रिहाय प्रोफेशनल्स, सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसका प्रस्तुतिकरण और हमारे बीच इसका इजहार किया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही काबिल तारीफ है। सर को सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हम सभी के बड़े भाई तथा सीआरसी गोरखपुर की रीढ़ आदरणीय राजेश कुमार यादव जी, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर को, जिनका सहयोग मार्गदर्शन हम सभी को बराबर मिलता रहा है और आपके नेतृत्व में हम सभी लोग इस तरीके के कार्यक्रम को अंजाम दे पा रहे हैं। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ सहयोगी की भूमिका में बने रहे स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट से क्लिनिकल असिस्टेंट आदरणीय हम लोगों के बड़े भाई राजन सिंह जी, आपका भी सहयोग हम सभी को बराबर इस तरीके के कार्यक्रमों में मिलता रहा है। पुनः मैं एक बार समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय राजेश कुमार जी, सहायक प्राध्यापक नैदानिक मनोविज्ञान विभाग सीआरसी गोरखपुर को मैं विशेष करके और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसा आज टॉपिक चुना है, कोपिंग विथ कोविड-19 साइको सोशल सपोर्ट, तथा इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आपने जो वक्ताओं का चयन किया है वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही काबिल तारीफ है।
आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की सफल रचना के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चूंकि टाइम अधिक हो चुका है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक डाली जा चुकी है। आप सभी प्रतिभागीगण से सादर अनुरोध है कि आप निश्चित फीडबैक लिंक को भरें, जिससे आज उपस्थिति आपकी हमारे साथ दर्ज हो सके। इस कार्यक्रम में जितने भी जुड़े रहे पुनर्वास व्यवसायिक गण तथा भिन्न भिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण, व्यवसायिक गण तथा स्टेक होल्डर्स, आप सभी को सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका सहयोग हमेशा यदि ऐसे ही मिलता रहा सीआरसी गोरखपुर परिवार को, तो हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को अंजाम देते रहेंगे, नित नए नए विषयों को, नए नए मुद्दों को टच करके देते रहेंगे, जो जनहित में आवश्यक है, उपयोगी है, नितांत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सर।